डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल क्लास में फिजिकल के एक्सपेरिमेंट विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी अज्ञात विलयन का विस्कोसिता विधि द्वारा सांद्रता का ज्ञात करना, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं विस्कोसिता क्या होती है। इस द विस्कोसिटी कि जब किसी द्रव की जो है एक सिकल जो लेयर है बढ़ती हुई गति से बहती है, तो किसी एक गति से बहते हुए द्रव के एक भाग और किसी अन्य जो अलग गति से बहते हुए उसी द्रव के दूसरे भाग के बीच जो रेजिस्टेंस कार्य करता है, वही विस्कोसिता कहलाता है। इसको हम समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि लिक्विड्स इन जनरल हैव एन inherent tendency to flow, but this tendency to flow is not always the same for all liquids. It is common experience that water flow more easily than honey. We know that कि पानी जो है honey की अपेक्षा easily बहता है. Therefore, water is said to have higher fluidity. पानी की fluidity ज़्यादा होती है. On the other hand, honey is said to have lower fluidity. These liquids which have lower fluidity are said to be viscous. जिसकी फ्लूइडिटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शान बोलते हैं या शांता बोलते हैं, विस्कस बोलते हैं। The example being honey, castor oil and glycerol. The viscosity therefore measures the resistance of a liquid to flow, while the fluidity measures the ease with which a liquid can flow. The two quantities, the viscosity and the fluidity, are essentially reciprocal to each other. Thus we can say neta is equal to 1 upon phi, where neta is the coefficient of viscosity and phi is the fluidity. Fluidity का क्या है? Viscosity inversely proportional है या reciprocal है. The viscosity is very much influenced by the shape, size and chemical nature of the liquid molecules. The greater the size of the molecules and the higher the molar mass, and the higher will be viscosity, because the greater will be intermolecular interactions. Isn't it? कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, मोलर मास ज़्यादा होगा, तो उसको विस्कोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मान भी ज़्यादा होगा. The hydrogen bond also enhance the coefficient of the viscosity for a large extent. It is indeed the presence of a network of hydrogen bonds which accounts for a very high viscosity of a glycerol, and incidentally the larger the number of hydroxyl group in a molecule, the more complex will be network of hydrogen bonds and the greater will be resistance of a liquid to flow. Isn't it? समझ आया बात ये कि जितनी ज़्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड का नेटवर्क होगा, मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, उसके बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसकी फ्लूइडिटी इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी. Due to this reason, heavy hydrocarbon oil and grease have fairly high viscosity value. इसीलिए जो हेवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जैसे ऑयल है, ग्रीस है, इनकी विस्कोसिटी वैल्यू ज़्यादा होती है. And similar to the surface tension, you would expect the viscosity to decrease with the increase in temperature. जैसे हमने previous lecture में पढ़ा था surface tension के बारे में कि temperature के साथ उसका मान, viscosity का मान भी कम हो जाता है. This is due to the decrease in intermolecular forces of attraction with increase in temperature. ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मान कम हो जाता है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी का मान भी कम हो जाता है. At higher temperature, the number of hydrogen bond in a liquid also diminishes and the viscosity is expected to decrease. और इसलिए हायर टेम्परेचर पर, ज़्यादा ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड का मान लिक्विड में कम हो जाता है और इसलिए उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है. तो ये हमने जनरल पढ़ा था. व्हाट इज द विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे और ये किस तरह से प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला फोर्स F, उसकी जो है वेलोसिटी
जो है उस पर dV/dx और द्रव की बहने वाली परतों के बीच जो एरिया है उसके A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A dV/dx, जहाँ dV/dx क्या है, वेग प्रवणता है, A क्या है उसका जो है लेयर्स के बीच की जो द्रव की जो लेयर्स उसका एरिया है A का मान। और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं देन वी गेट another constant F is equal to neta A dV/dx where neta is a constant जिसको कि इस लिक्विड का शानता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। और जो इसको सेंटीमीटर ग्राम में पद्धति में या सीजीएस पद्धति में इसको नीटा की जो उसका यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और या हम इसको यूनिट को बोलते हैं पॉइस, यानी विस्कोसिटी की यूनिट जो है सीजीएस में पॉइस होती है। कुछ जो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी की रेंज है जो 0.002 पॉइस से 8 पॉइस तक होती है। जैसे लिक्विड जो ईथर की है वो 0.002 है और ग्लिसरॉल की 8 पॉइस के बराबर होती है, और जो पानी की विस्कोसिटी है वो 0.01 पॉइस होती है। अब हम विस्कोसिटी को मेजर किस तरह से कर सकते हैं? विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। इसको सबसे पहले ऑस्टवाल्ड ने बताया था, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम उसी साइंटिस्ट के नाम पर ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर है। कि विस्कोसिटी मापी या ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर जिस आपके आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें इक्वेशनली ए और बी आप इस तरह से देख सकते हैं, ए और बी इक्वेशनली है जो एक बल्ब सी से जुड़ी हुई है, और इसका जो दूसरा भाग है वो चौड़ी जो है नली से जुड़ा हुआ है, यानी जिसमें बल्ब डी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और लिक्विड का एक जो निश्चित आयतन अपने इस तरफ से एफ से, ये जो एफ आप पॉइंट देख रहे हैं एफ से डाल देते हैं और इसको सक्शन द्वारा इस पॉइंट से खींचा जाता है कि यहाँ तक लिक्विड जो है ई पॉइंट तक आ जाए। इसी थोड़ा आगे आ जाएगा, ई पॉइंट पर हम सेट कर देंगे। लिक्विड की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि इसकी जो इस बल्ब में इसमें ई से ऊपर रहे और इसके डी से डी में आधा रहे। अगर ज़्यादा कम होगा तो नहीं बहेगा, ज़्यादा होगा तो बराबर आने पर भी ये इसका फ्लो नहीं होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि इसका आधा होना चाहिए, ई से थोड़ा सा ऊपर लिक्विड होना चाहिए। जैसे ही मेनिस्कस चिन्ह ई तक पहुंचता है उसको हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं, और ई से और क्या होना चाहिए, जैसे ही मेनिस्कस ए तक पहुंचता है ई से ए तक स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं। तो ई से ए तक के बहने का हमें समय को नोट करना है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। सबसे पहले हम वाटर के साथ पानी को लेते हैं और पानी को हम सक करके पॉइंट ई तक यहाँ तक पहले ऊपर ले लेते हैं, यहाँ तक पानी आ जाना चाहिए इसमें बल्ब डी के। देन जैसे ही पानी का यहाँ तक ई तक पहुँचता है हम स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं, टाइम नोट करना शुरू करते हैं। ई से ए तक जैसे ही पानी बहता है उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं और इसका समय को हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेता है। लिक्विड को ओकेजनली ए बी से होकर प्रवाहित करने वाला जो प्रेशर है किसी भी क्षण पर एच डी जी के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिखिए 3 में कि नीटा का मान जो है गुणनफल यानी इसका P इंटू टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो दूसरा कारक है वह आर वी और एल ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो नीटा इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एन टी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच जी डी एन टी इसके बराबर होता है। जहाँ एच क्या है, दो जो अपने लेयर देखी थी हमने ई टू ए, इसकी दोनों में द्रव की लिक्विड में ऊंचाई में अंतर है, एंड डी जो है लिक्विड का डेंसिटी है, जी जो है वो है उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, और टी का जो है इसमें दोनों के बीच में जो हमने देखा था ई से ए के बीच में जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर लेते हैं तो उसका बीच का समय है, तो टी इज द टाइम। अब हम देखते हैं दो लिक्विड का हमें कहने का रिलेटिव विस्कोसिटी को डिटरमाइन करना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 को कि फॉर फर्स्ट लिक्विड नीटा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच डी 1 एंड जी टी 1, and for second liquid and neta 2 is equal to directly proportional to the h d2
G(T2). समीकरण 5 और 6 से हमें मिलती इक्वेशन नंबर 7, यानी η1/η2 इज इक्वल टू द D1 T1, क्योंकि बाकी चीज कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, G कैंसिल आउट हो जाएगा, H कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा D1 T1/D2 T2। इस फॉर्मूले से हम किसी भी अननोन जो है दूसरे लिक्विड का विस्कोसिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि η1 हम जो विस्कोसिटी है वाटर की मानते हैं, D1 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, T1 इज द टाइम फॉर वाटर इन बिटवीन टू द जो मेनिस्कस E to A, एंड η2 इज द viscosity of another liquid, जिसको कि हमें डिटरमाइन करना है। D2 is the density of liquid and T2 is the time between flow E to A। तो इस तरह से हम किसी भी अज्ञात विलयन की क्षमता को, विस्कोसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये है इसका इफेक्ट है, फैक्टर्स है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अमंग द सिमिलर सब्सटेंसेस एन इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द विस्कोसिटी। जिस अगर किसी लिक्विड का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी का मान भी ज्यादा होगा। और ब्रांच चेन कंपाउंड हैव हायर विस्कोसिटी देन दोज इन्वॉल्विंग द स्ट्रेट चेन। जो स्ट्रेट चेन वाले जो है कंपाउंड्स हैं उनके कंपेरेटिवली अगर जिनकी ब्रांच चेन होती है, ब्रांचेस होती है, वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी का मान ज्यादा होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज द पोलर कंपाउंड आर मोर विस्कस देन द नॉन पोलर वन। यानी जो ध्रुवीय कंपाउंड होते हैं वो अध्रुवीय कंपाउंड के कंपेरेटिवली ज्यादा विस्कस होते हैं। Presence of direct bonds such as hydrogen bond causes the viscosity to increase। ये मैंने पहले आपको भी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस क्या करती है, विस्कोसिटी को बढ़ा देती है। फोर्थ पॉइंट, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट एंड हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इस तरह की जो आती है, मतलब इसको जो विस्कोसिटी में अगर कोई जो है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हो, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, ये जो है क्षमता को बढ़ा देती है। और इन अब टेम्परेचर का जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर राइजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बिकम वीक। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है, रिजल्टिंग द सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन द विस्कोसिटी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी का मान कम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ताप बढ़ने के साथ विस्कोसिटी में बहुत मेजरेबल चेंज आता है। जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी 2% तक कम हो जाती है। यानी विस्कोसिटी जिस ताप पर ज्ञात की जाती है उसका हमें इसको मेंशन करना आवश्यक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का मान क्योंकि परिवर्तित होता है। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स है जिसको कि हमने डिस्कस किया है कि इस तरह से विस्कोसिटी का मान परिवर्तित होता है। अब हमको करना है कि किस तरह को एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से किसी भी कंपाउंड का जो है विस्कोसिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो रिकॉर्ड में लिखना है टू एम आपको लिखना है टू डिटरमाइन द रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू वाटर एट रूम टेम्परेचर बाय ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये आपको ज्ञात करना है to determine the composition of the unknown solution by the viscosity Ostwald viscometer या viscosity method। ये आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये उद्देश्य होगा। रिक्वायरमेंट्स में आप लिखेंगे डिस्टिल वाटर, ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर, अननोन लिक्विड एंड आरडी बॉटल एक्सेट्रा। एंड थ्योरी आपको जैसे हमने भी बताई है अभी आपको किस तरह से जो इसका था कैलकुलेशन थी कि η1/η2 इक्वल टू क्या था, d1t1/d2t2। ये आपको लिखना है, इसकी थ्योरी और प्रिंसिपल को लिखना है। देन डिस्कस करेंगे हम प्रोसीजर को। कि प्रोसीजर में आपको सबसे पहले क्या करना है, विस्कोमीटर को क्लीन करना है क्रोमिक एसिड से, फिर पानी से वॉश करना है और उस बाद डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, और उसके बाद आपको पानी को सक करके पॉइंट E to A तक आने में आपको समय को नोट करना है। ऐसा पानी के साथ 3 बार करेंगे। फिर आप जिस अज्ञात विलयन की आपको क्या करना है, सांद्रता ज्ञात करनी है विस्कोसिटी विधि से, उसको आप 3 बार आप उसको टाइम नोट करेंगे जब तक कि उसकी रीडिंग कॉन्कोर्डेंट रीडिंग नहीं आए। तो ये आप इसके 3 रीडिंग लेंगे। फिर आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर आप जिस दिन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उस दिन का रूम टेम्परेचर क्या है। एंड फिर उसके बाद में आप लिखेंगे पानी के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का होगा, देन आप वाटर के साथ में लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लो एंड बाद में एवरेज वैल्यू। दूसरा लिखेंगे फॉर लिक्विड अंडर, जो भी आपको लिक्विड का लेना है, दूसरे जो इसका गैस विलियन का लेना है, और उसके बाद उसके साथ टाइम ऑफ फ्लो और एवरेज वैल्यू। तो इस तरह से आप तीन तीन रीडिंग पहले वाटर के साथ लेंगे, देन तीन रीडिंग आप उसके अज्ञात विलियन के साथ लिखेंगे। और ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे बाद में डेंसिटी ऑफ वाटर D2 का मान लिखेंगे। और D2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आप पहले लिखेंगे वेट ऑफ एम्प्टी RD बोतल इन ग्राम, वेट ऑफ RD बोतल प्लस 10 ml वाटर एंड वेट ऑफ वाटर। इस तरह से आप डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आपका विस्कोमीटर है, ये इसमें पहले आप फिगर को देखिए। आप जैसा मैंने आपको पहले बताया था आपने, ये एक जो है सब विस्कोमीटर ऑस्वाल्ड विस्कोमीटर है, और इसमें आप जो है पानी को इस तरह से भरेंगे, यहाँ से पानी डालेंगे और सक करके इस पॉइंट ए से बी तक, बी इज द अपर मार्क एंड ए इज द अपर मार्क, बी इज द लोअर मार्क, यहाँ तक आने में जो आपका समय होगा उस समय को आपको नोट करना है। ये रीडिंग आप पानी के साथ 3 बार लेंगे और दूसरा अज्ञात रीडिंग के साथ भी आप 3 बार इसको रीडिंग को इस तरह से आप लेंथ में कसेंगे ऑस्वाल्ड विस्कोमीटर को, और इस तरह से आप इसको फ्लो ऑफ वाटर को आपको टाइम नोट, फिर आप ग्राफ लोड करेंगे इसके बीच में टाइम ऑफ फ्लो के मतलब टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में हम आपको अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर का सॉल्यूशन देते हैं आपको 5%, 10%, 15%, 25%, और एक आपको अज्ञात वेरिएंट यानी अननोन सॉल्यूशन का आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाटर के साथ में टाइम नोट करेंगे, देन आप 5% जो शुगर सॉल्यूशन दिया गया है आपको उसके साथ आप टाइम नोट करेंगे, देन 10% के साथ करेंगे, 15 के साथ करेंगे एंड 25 के साथ करेंगे, और फिर अननोन यानी अज्ञात वेरिएंट के साथ आप क्या करेंगे, टाइम को नोट करेंगे ऑस्वाल्ड विस्कोमीटर की सहायता से। फिर आप ऑब्जर्वेशन टेबल में अपनी रीडिंग्स नोट करेंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में। तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। और जो अज्ञात विलियन होगा, फॉर एग्जांपल आपका अननोन सॉल्यूशन है 20%, तो आपको इस तरह से जो आपके अज्ञात विलियन पे जो रीडिंग आई है उसके पैरेलल आप उसको लाइन को खींचेंगे, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से आप अज्ञात विलियन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिए गया जो अज्ञात विलियन है उसकी सांद्रता क्या है। तो ये आपका जो रिकॉर्ड है उसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले एम या उद्देश्य लिखेंगे, देन रिक्वायर्ड अपरेटस को लिखेंगे, थ्योरी या प्रिंसिपल को लिखेंगे, उसके बाद में प्रोसीजर या मेथड को लिखेंगे, फिर बनाएंगे आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, फिर बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण सारणी, और उसके बाद प्लॉट करेंगे ग्राफ को, और लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट या परिणाम कि दिए गए अज्ञात विलियन की सांद्रता सो एंड सो, फॉर एग्जाम्पल 20% ऑस्वाल्ड विस्कोमीटर की सहायता से ज्ञात की गई। तो ये इस तरह से रिजल्ट या परिणाम को आप लिखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल आपको लेबोरेटरी में परफॉर्म करना है, एग्जाम्स में आपको इस तरह से ही काम करना है। और रिकॉर्ड में जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप रिकॉर्ड में भी इसी तरह से मेंशन करेंगे। तो ये 2 फिजिकल के प्रैक्टिकल थे आपके। विस्कोसिटी यानी शांता विधि से अज्ञात विलियन की सांद्रता ज्ञात करना, और पहला जैसे मैंने बताया था पृष्ठ तनाव विधि से इसकी जो अज्ञात विलियन की सांद्रता को ज्ञात करना। तो ये दोनों प्रैक्टिकल आपके जो है फिजिकल एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो प्रैक्टिकल्स हैं, नॉर्गेनिक का प्रैक्टिकल्स है, मिक्सचर्स की बात करेंगे हम बाद में, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि आपको दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह से उसकी क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है या फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। ये प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे।